مریم نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ ہرگز نہیں، پہلے تھوڑی مصیبتیں ہیں جو ایک اور مصیبت مول لے لیں ہم۔ ماہین نے اسے بغور دیکھا۔ یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں انہی کی مسلط کردہ ہیں نا، تائی امی کے کیے جادو ٹونے ہیں یہ۔ مریم باجی، آپ نے وہ تعویذ اپنی نظروں سے دیکھنے ہیں نا، اگر انہوں نے ایک غلط کام کیا تو لازم ہے کہ ہم بھی وہی کریں گے، تو پھر یہ اس کا حل کیا ہوگا آپ بتائیں۔ مریم کچھ دیر سوچتی رہی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ مدرسے سے بچے بلوا کر قرآن پڑھوا لیں، برکت بھی ہوگی اور امی ابو کے لیے ایصال ثواب بھی ہو جائے گا۔ ماہین اسے دیکھتی رہی۔ اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو چکا اس کا کیا؟ مریم نے رسان سے اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ میں اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتی ہوں، وہ قیامت کے روز میرا انصاف کر دے گا۔ ماہین ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ قیامت تو ہو کر گزر بھی گئی باجی، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ مریم نے اس کی آنکھوں کو بھیگتے پایا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی بار اس نے مریم سے کئی بار اس سلسلے میں بات کرنا چاہی، لیکن اس کا جواب انکار میں تھا۔ میں فہمیدہ کے بتائے کسی بھی عامل بابے کے پاس خود جاؤں گی اور نہ تمہیں جانے دوں گی۔ نہیں، وہ اسے سمجھاتی رہی تھی، یہ گناہ ہوتا ہے چندہ، یہ تعویذ دھاگے، یہ جادو وغیرہ سب شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک دھاگا، ایک منتر کسی کی قسمت کیا بدلے گا؟ اس راستے پر مت نکلو، یہ دلدل ہے۔ مریم شاید ٹھیک کہتی تھی کہ وہ ایک دلدل تھی۔ اس میں داخل ہونے کا راستہ تو تھا لیکن باہر نکلنے کا نہیں۔ وہ بس تباہی لا سکتی تھی اور بربادی، برباد جو سرتا پا تھی، تباہ جو وہ کر دی گئی تھی۔ اس دن مریم کو بتائے بغیر ہی وہ پہلے فہمیدہ کے گھر پہنچی اور پھر اس کے ساتھ اس عامل کے پاس۔ اس عامل نے اپنے سر کو ادھر ادھر جھٹکے دیے اور کچھ پڑھنے لگا۔ اس کے سامنے رکھی رکابی سے مسلسل دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس تکلیف دہ بو کا منبع شاید وہی دھواں تھا۔ تجھ پہ جادو کیا گیا ہے، تیرے خاندان پہ بڑا سخت جادو ہے، بہت خطرناک۔ اس نے آنکھوں کو پھیلا کر اسے اطلاع دی۔ اس کا توڑ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اسے کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے اور وقت بھی۔ میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ ماہین نے اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھا۔ پرانے زمانے کی کسی روح سے مدد لینی ہوگی، اسے بلائے گی تو سب سے پہلے تجھے ہی برباد کر دے گی۔ وہ طنزیہ سا ہنسی تھی۔ برباد؟ وہ تو اسے کیا جاتا ہے نا جو پہلے سے آباد ہو۔ پہلے سے ہی کھنڈر کو کوئی کیا کھنڈر بنائے گا بابا جی؟ اس عامل نے پھر سے سر کو یہاں وہاں جھٹکے دیے تھے۔ اس رکابی میں ڈالتا جا رہا، زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے وہ مٹھی میں بھری مٹی کو اس رکابی میں ڈالتا جا رہا تھا۔ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، روپیہ، پیسہ، وقت، محنت، کچھ بھی کہیں میں کرنے کو تیار ہوں۔ بس میرے ہاتھ میرے دشمن کی گردن تک پہنچ جائے، بس بازی پلٹ جائے۔ اس نے چادر کی بکل ماری اور یوں اس کا چہرہ بہت حد تک چھپ گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس عامل بابا نے اسے جو وظیفہ بتایا تھا وہ اسے اس عمارت میں ہی جا کر کرنا تھا۔ روز دوپہر کو اکیڈمی کا کہہ کر وہ گھر سے نکل آتی تھی۔ جھوٹ بولنا تو اب اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا اور دھوکہ دینا وہ کھنڈر سی عمارت تھی۔ کہنے والے کہتے تھے کہ گزرے زمانوں میں وہاں ایک مندر ہوا کرتا تھا، اب بس باقیات بچی تھی۔ متنازع زمین ہونے کی وجہ سے کوئی شاذ و نادر ہی ادھر کا رخ کرتا تھا اور اب وہ وہاں تھی، اس پرانے سے برگد کے پیڑ کے پاس جس کی لمبی لمبی جٹائیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ وہ وہیں ایک طرف بنے چبوترے پر بیٹھ گئی اور وہ سیاہ دھاگا نکالا تھا۔ آنکھیں موند کر ہولے ہولے کچھ بولتے ہوئے وہ اس دھاگے پر گرہیں لگاتی، پھونک مارتی اور پھر سے ویسے کرنے لگتی۔ وقت بھی برگد کے اس پیڑ کی طرح یہاں وہاں اپنے اندیکھے ہاتھ پھیلاتا رہا۔ شام کا آخری مسافر بھی ہار گیا اور سورج کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ اس نے اس دھاگے کو آخری گرہ لگائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ برگد کی اس جھولتی شاخ سے وہ دھاگا باندھ کر اب اس کے سامنے جھکی اور اپنا منتر دہرانے لگی۔ اسے وہ جاپ کرتے مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ اس دن پھر سے وہ اس عامل کے سامنے تھی۔ اس کا پتہ اس پہلے بابے نے اسے بتایا تھا۔ اس غلیظ اور پرانے سے پیوند لگے چولے کو گلے میں ڈالے اس عامل نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اس کی چنی چنی سیاہ آنکھوں میں تیرتی وحشت بھی اسے ڈگمگا نہ سکی تھی۔ ہولے سے چادر کا کونا سر پر ڈال کر وہ اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ کیا چاہت ہے تیری؟ اس کی آواز ہی بڑی منحوس تھی، یوں جیسے رات کے سناٹے میں کوئی جانور دوسرے پر غرا رہا ہو۔ اس خاندان کی تباہی، وہ تو تیرا بھی خاندان ہے،
اگر تجھے یاد ہو تو۔ آخ تھو، اس نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا۔ اس آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس کے غلیظ دانت واضح ہونے لگے۔ کس حد تک جا سکتی ہے اپنی چاہت کے حصول کے لیے تو؟ وہاں تک جہاں تک کوئی حد نہ رہے۔ اس نے معنی خیزی سے اسے دیکھا۔ بدلے میں کیا دے گی؟ اب کہ اس نے بغور اسے دیکھا، وہ للچائی ہوئی نظروں سے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر سے کپڑا سرکا دیا۔ وہ سب جو تیری چاہت ہوگا۔ اس کوٹھڑی میں جلتے دیپک کی ناکافی روشنی میں وہ چہرے گڈ مڈ ہو رہے تھے، دیواروں پر پھیلے ان بے ڈھبے سے سایوں کی طرح کہ ان کی ہیئت واضح تھی اور نہ ہی چہرے کے نقوش۔ اس فضا میں پھیلی بدبو سے اب وہ آشنا ہو چکی تھی۔ اس سے اب اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ بہت ساری چیزوں کی طرح اب وہ اس سے بھی سمجھوتا کر چکی تھی، جیسے وہ سمجھوتا کر چکی تھی خوف سے، خود پر حاوی ہوتے خیالات سے، اور اس تکلیف سے اور ان حالات سے۔ میں قیمت ادا کرنے آئی ہوں اس کی جو مجھے ابھی ملا نہیں ہے۔ مجھے اچھے سے دیکھ لے اور جان لے کہ میں اپنی بات سے پھر جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ اپنے جسم پر موجود لبادہ نوچ چکی تھی۔ اس سردی میں بھی اس کا وجود کپ کپایا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا اور رالیں ٹپکانے لگا۔ جسم ایک ذریعہ ہے اس تک جانے کا۔ وہ خوش ہوگا تجھ سے، پھر تو جیسا کہے گی ویسا ہی ہوتا رہے گا۔ وہ تو گویا پتھر کی سل بن چکی تھی، خاموش، ساکت، بے حس۔ اس کے تو گویا جذبات ہی نہیں تھے۔ وہ اب زندوں میں نہیں تھی، جیسے وہ خود نہیں تھی۔ اس عامل نے خوش ہو کر اسے وہ عمل بتایا تھا۔ وہ پرانے زمانوں کا دیوتا ہے، اس کی مدد مانگو تو وہ سزا کا اختیار دیتا ہے، پر اسے پانا بڑا کٹھن ہے۔ اس کو بس میں کرنے کے لیے محنت لگتی ہے اور اسے قیمت بھی دینا پڑتی ہے۔ وہ تو ہر صورت سے ہر عمل پر تیار تھی۔ میں نے کہا نا، وہ ایک دلدل تھی، وہ ایک نشہ تھا جو ایک لت تھی، ایک لت تھی جو ایک بار لگ جائے تو پھر اسے چھڑوانا ممکن نہیں تھا۔ اور سے اور کی چاہ، زیادہ سے زیادہ کی بھوک، میں سب کروں گی۔ اب رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ بنی آدم اپنے اپنے ٹھکانوں میں پناہ گزیر سکون کی نیند سو رہے تھے۔ ایسے روح کو جما دینے والے جاڑے میں باہر نکل کر وہ ویسے کون سی کمائی کر لینے والے تھے؟ سڑک ویران پڑی تھی، آسمان خاموش تھا اور آوارہ کتے بھی ساری رات بھونک بھونک کر اب تھک چکے تھے۔ وہیں قبرستان کے آہنی دروازے سے لگ کر کوئی یہاں اور کوئی وہاں نڈھال پڑا تھا۔ وہیں قبرستان سے ذرا آگے چل کر اندھیروں میں ویرانوں کے بیچوں بیچ وہ جگہ تھی جو ایسی بے آباد نہیں تھی۔ اس تازہ بنی قبر کے پاس وہ ذی نفس موجود تھا جو کہ سر جھکائے زیر لب کچھ بڑبڑانے میں مصروف تھا۔ اس کے پاس زمین پر آڑھی ترچھی لکیریں کھینچی گئی تھیں جن پر کئی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ایک دیپ، ایک کٹوری میں خون، مردار جانور، ایک پنجرے میں قید چمگادڑ، کچھ زنگ آلود کیل، ایک کھوپڑی اور جانے کیا کیا الا بلا۔ الغرض یہ کہ وہ ہر چیز جو ایک جیتے جاتے انسان کو ہیبت میں ڈال سکتی تھی وہاں موجود تھی۔ اس انسان نے خون میں انگلی ڈبو کر قبر پر کچھ لکھنا شروع کیا تھا۔ وہ نہ سمجھ میں آنے والے الفاظ تھے، کچھ اعداد اور کچھ حروف۔ زندہ چمگادڑ کا پنجرا قبر پر رکھ کر وہ اس پر مٹی کا تیل چھڑکنے لگا۔ اشتامان کی سرکار میں زندگی کی بھیڑ کہ وہ خوش ہو جائیں اور ہماری طرف لوٹ آئیں۔ نعوذ باللہ۔ شولوں کی لپیٹوں کے بیچ پھڑ پھڑاتی چمگادڑ اب اپنی منحوس آواز میں چیخنے لگی تھی۔ اس انسان نے اب وہ مردہ گوشت چبانا شروع کیا تھا۔ خون اس کے ہونٹوں سے بہتا اس کے چہرے کو رنگنے لگا تھا۔ میرے آقا مجھے اپنی غلامی میں لے لیں کہ ان کا راج ہو ہر طرف اور مجھ پر، اور یوں وہ حکومت کرے۔ نعوذ باللہ۔ اس قبر کے گرد عجیب انداز سے چکر کاٹتے، ان بے معنی جملوں کا جاپ کرتے اس نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کیے تھے۔ آگ کی لپیٹیں زندہ جانور کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھیں۔ فضا میں وہ گندی سی بو پھیلنے لگی۔ چلا کرتے کرتے وہ ذی نفس خود کو برہنہ کر چکا تھا مہان اشتامان کے لیے کہ وہ یہ تحفہ قبول کرے۔ وہ جسم چاہے تو لے لیں اور روح بھی کہ انہی کی امانت ہے۔ نعوذ باللہ۔ اس کڑکڑاتے جاڑے کے موسم میں آسمان تلے اس وجود نے اپنے بدن کو اسی خون سے رنگنا شروع کیا تھا۔ وہ منتر دہراتے لب، یہاں وہاں سرسراتی انگلیاں ہر عضو کو لال کرتی جا رہی تھی۔ اس کمرے میں پھیلے اندھیرے میں موم بتی کی زرد لو لڑنے میں مصروف تھی۔ دیوار پر دور تک پھیلے سائے رقص کر رہے تھے۔ اس ناکافی روشنی میں وہ چہرہ غیر واضح تھا،
कमरे के बीचों बीच उन लकीरों से खींचे गए निशानात के दरमियान पुरानी हड्डियों से बने दायरे में वो लड़की बैठी थी जिसने स्याह चोगा पहन रखा था। सर झुकाए वो अपने काम में मसरूफ थी। वो छोटा सा रुई भरकर बनाया गया कपड़े का वजूद, वो गुड्डा जिसके गिर्द वो पट्टियां लपेटती जा रही थी, जेरे लब कुछ मंतर पढ़ती जा रही थी। उसके पास कटोरी में ताज़ा खून रखा था जिसमें उंगलियां डबोकर उसने वो बेजान गुड़िया के वजूद पर एक नाम लिखा था, उसे तकलीफ दो, सारे ज़मानों की सबसे दर्दनाक तकलीफ, वो तकलीफ जिसकी कोई हद ना हो, जिसके लिए कोई दवा ना हो, उसे तकलीफ दो, उससे 100 गुना ज़्यादा तकलीफ जो उससे किसी को मिली हो। वो जंगालूद सुइयाँ थीं जिनको बुलंद आवाज़ में कुछ पढ़ते हुए उसने उस जिस्म में घुसाना शुरू किया था, एक के बाद एक। उसे तकलीफ दो, मौत जैसी तकलीफ, लेकिन ऐसी कि मौत भी उससे रिहाई ना दिला सके। वो नफ़रत से कहती उसे सुइयाँ खबोती चली जा रही थी। उसे वो चिल्ला काटते 1.5 माह होने को आया था। वो रात भी बड़ी डरावनी थी। बादल ऐसे गरजते थे कि खौफ के मारे कलेजा मुंह को आता था। लम्हा लम्हा बिजली चमकती थी और यूं लगता था कि अभी ज़मीन को छू लेगी। आंधी के थपेड़े हर शय को जड़ से उखेड़ देने को तैयार थे। वो अपना स्याह चोला पहने उस कब्र के गिर्द चक्कर काट रही थी। दीप तो कब का बुझ चुका था, उसकी अब उसे परवाह नहीं थी। अब जब अंधेरों से दोस्ती करने की ठान ली थी तो रोशनियों की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। वो ज़रूर आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। जब कोई उन्हें पुकारता है, उन्हें मदद के लिए आवाज़ देता है तो वो ज़रूर आते हैं। बस ये याद रखना कि हर शय की एक कीमत है, कहीं जिस्म, कहीं रूह, कहीं खुशी, कहीं दर्द, कहीं अपना आप और कहीं दूसरों की कुर्बानी देनी होती है। तू क्या दे सकेगी? उसने दोनों हाथ सीने पर बांध दिए और रफ्तार बढ़ा दी। बादल अब छलनी हो चुके थे। बारिश की बूंदें ज़मीन का सफ़र तय करने लगी थी। उसने गहरी सांस ली। बारिश जोर पकड़ने लगी थी। बादल की गरज वहीं की वहीं थी। उसने कब्र के पास रखे कटोरे को उठाया और उसमें से मकरू रंग का माया तैरता देखकर ऊंची आवाज में दोहराते हुए अपने जाप को उसे मुंह से लगा लिया। मेरे आका अश्तामान के बस वो है मेरे और मैं उनकी दास, मेरे आका नाउज बिला। उसने बिजली को जमीन तक पहुंचते देखा। वो कब्र लम्हों में फट गई। वो कब्र का जानवर था जो अपनी नहुसत भरी आवाज में रोया था, मेरे आका आए और मुझे अपनी गुलामी में ले ले। नाउज बिला। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। आंखें मूंदे सर उठाए वो कब्र के पास खड़ी थी जब उसने वो लम्स महसूस किए। कोई था, कोई तो था जो वहां था। उसने आंखें नहीं खोली थी। वो एहसास रेंगता हुआ उसके बदन पर दूर तक जा रहा था, बारिश के कतरों के साथ तेजी से। सवाल क्या है? उसने महसूस किया कि सवाल हुआ था अजियत। आंखें मूंदे मूंदे वो होले से बोली थी, उससे ज्यादा जो सही जा चुकी हो, उससे ज्यादा मुमकिन भी है क्या? वो अपने बिस्तर पर लेटी थी। कमरे में सन्नाटा था। अचानक उसने वो गैर मानूस सी बू महसूस की थी। उसने जल्दी से आंखें खोल दी। उसे लगा कि कमरे में धुआं सा भर रहा था। उसकी आंखों में चुभन उतरने लगी। तेरी चाहत पूरी हुई। उसने अपने कानों के पर्दों से वो जहरीली आवाज टकराते महसूस की थी। उसने देखा वो उसकी पैंती के पास खड़ा था। वो अंधेरे में अंधेरे जैसा ह्योला, अब मेरी कीमत चुकाने की बारी तेरी है। माहीन को लगा उसका जिस्म अकड़ने लगा था। क्या चाहत है तेरी? कीमत में मांगता है। उसने अश्तामान के धुआं होते वजूद को हवा में तहलील होते और शबी सी बनते हुए देखा। माहीन को लगा उसके सारे बदन से जान निकल गई थी। वो मरियम थी। हर तरफ अंधेरा था, दम घोट कसीला अंधेरा, ऐसा कड़वा कि सांस की रवानी में रुकावट बन रहा था। ऐसे में उसने वो तेज बू महसूस की, ऐसी सरांट के दिमाग सड़ने लगा था। वो बू बढ़ती जा रही थी। उसने उससे बचने के लिए नाक पर हाथ रखा तो महसूस किया कि उसकी नाक तो थी ही नहीं। दहशत के मारे वो कांप उठा था। उसने मदद के लिए चिल्लाना चाहा लेकिन बेसूद, आवाज उसके हलक में ही अटक कर रह गई थी। उसने अपने चेहरे पर उंगलियों के लम्स से महसूस किया, उसके होंठ आपस में पैवस्त होकर सी दिए गए थे। अब वो थर थर कांपने लगा था। उस अंधेरे में उसने किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनी थी। वो अंधेरे में एक तरफ को भागने लगा था। भागता रहा, सांस फूलने लगी, भागता रहा, दम घुटने लगा, भागता रहा, यहाँ तक कि गिर पड़ा।
उसका पीछा करती मखलूक उस पर झपट पड़ी। ज़ियाद के हलक से चीख निकली और वो जल्दी से उठ बैठा था। उसका सारा वजूद पसीने में भीगा हुआ था और सांस धूंकने की माने चल रही थी। ये मुसलसल तीसरी रात थी जब वो डरावना ख्वाब देखकर जागा था और वो उसके चहारसू फैल रही थी। अगली सुबह वो उठा तो गुजरी रात के असरात उसके वजूद पर कहीं बाकी रह गए थे। सारा जिस्म ऐसे टूट रहा था जैसे किसी ने उसे जंजीरों से बांधकर लाठियों से मारा हो। रेस्ट कर ले बेटा, काम तो सारी जिंदगी होता रहेगा, अम्मी ने उसे मशवरा दिया था। लेकिन वो उसे मामूली कहकर, बदलते मौसम की वजह बताकर 2 गोली पैनाडोल खाकर काम पर आ गया। जैसे जैसे दिन गुजरता गया उसके जिस्म में ताकत कम होती रही थी। वो गंदी सी बू तो मुसलसल उसके हवासों पर सवार थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका मंबा कहाँ था। अपनी तबीयत की वजह से उसे दफ्तर से जल्दी निकलना पड़ा था। घर पहुंचा और आराम की गर्ज से लेट गया। शाम में फिर से वही ख्वाब देखकर उठा और रात तक उसको बुखार हो चुका था। उसने मेरा फ़ायदा उठाया है, मुझे कमज़ोर जानकर मेरा जानी और माली नुकसान किया है। मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती हूँ। वो रोज़ खुद को बताती थी और चिल्ला काटने के लिए रात को घर से निकलने के लिए तैयार करती थी खुद को। हर किस्म के खौफ को उसने अंदर से बहुत पहले निकाल दिया था। अब तो बस एक आग लगी थी जो उसे हर वक्त उकसाती थी कि उसे कुछ कर गुजरना चाहिए। वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। ज़ियाद को ईज़ाएं देने का हर हीला उसने किया था। क्या उसका कोई असर भी था या नहीं? उस दिन देखने के लिए वो बहाने से उसके घर गई थी। पिछले कई दिन से उसे बुखार है, सर दर्द और जिस्म में दर्द है। मौसम भी तो बदल रहा है ना, हो जाता है। डॉक्टर को दिखाया है, चंद दिन रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। वो आमिल के पास पहुंची थी। मैंने ये सब नहीं मांगा था, तो फिर क्या मांगा था? वो सब जो मैंने सहा है, वो सहे वो सब। ये बुखार और दर्दें तो मेरा बदला नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो इबरत का निशान बन जाए। वो न जाने क्या चाहती थी, पर उस आमिल ने उसे बताया था, सख्त जादू बस उसे नहीं तोड़ेगा, तुझे भी टूटना पड़ेगा। ये बोझ उठाएगी तो थक जाएगी। वो कीमत बड़ी ज्यादा मांगेगा, तू दे नहीं सकेगी। मैं सब दे दूंगी, अपनी जान की भी कुर्बानी। वो उसकी आंखों में देखकर बोली। वो बीमार पड़ता गया था, दिन रंगों में स्याह होता गया, जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया, सारे चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। यूं था जैसे कोई होले होले उसके वजूद से जिंदगी निकाल रहा हो। उसकी रूह आहिस्ता आहिस्ता कब्ज कर रहा था कोई। उसकी बीमारियां डॉक्टरों की समझ से बाहर थी। उसकी तकलीफ़ों को वो साइकी कह देते थे। माहिर नफ्सियात के साथ भी कई सेशन हुए, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, कहीं कुछ गड़बड़ दिखाई ही नहीं देती थी, लेकिन वो कहीं से भी एक तंदुरुस्त इंसान नहीं दिखाई देता था। उसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़ चुके थे। वो सारी सारी रात जागता था इस खौफ से कि वो ख्वाब उसे फिर से डराएगा। कभी 2 घड़ी आंख लगती तो चीखें मारता उठ बैठता और अनदेखी चीज़ों को देख देख कर रोता रहता। कभी उसे ह्योले दिखाई देते और कभी कुछ तो कभी कुछ। दौरे पड़ने लगे थे उसे। वो चीखते रोते हुए जाने क्या क्या कहता रहता था। उसकी उसी हालत की वजह से उसका कारोबार खसारे की तरफ जा रहा था। मुर्दार देखते ही सबसे पहले गिद्ध उतर आते हैं। वो मांस खाने को तैयार होते हैं। उसके भी मरने का इंतजार किए बगैर ही उन गिद्धों ने उसे नोचना शुरू कर दिया था। किसी जानने वाले ने मशवरा दिया कि जादू के असरात लगते हैं, कोई रूहानी इलाज करवा कर देखो। वो किसी आलिम के पास ले गए, वजीफे बताए गए। माहीन अपने आमिल के पास जा पहुंची। वो तोड़ करेंगे तो सहर टूट जाएगा, ऐसा कच्चा अमल बताया आपने मुझे। हर शय का तोड़ है बच्ची। नहीं, वो फौरन बोली, हर शय का तोड़ नहीं होता। बहुत सी बीमारियां लाइलाज होती हैं। बहुत से जख्म ऐसे हैं जो सारी उम्र नहीं भरते। मेरे घाव नहीं भरे तो उसके कैसे भर सकते हैं? वो और सख्त चिल्ला काटने को तैयार हो गई। वो आमिल खतरा खतरा लापता रहा था। एक पुरानी रूह है, उसे काबू कर ले, फिर जो चाहे करवा ले उससे। ये कर सकेगी तू? कर ले फिर। उसने ठान ली थी। उस शख्स को अजियत देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। किसी भी इंसान के साथ मौत के अलावा बदतरीन क्या किया जा सकता है? मोहलिक तरीन बीमारी। तुम क्या सोच सकते हो? किसी एज़ा को तुम दर्द की आखिरी हद मानोगे? कैसी बर्बादी देखोगे तो कहोगे कि हाँ, यही होती है बर्बादी। किसी के साथ बुरे से बुरे का क्या मुमकिन है? हाथ पांव सही सलामत थे, पर उनमें जान नहीं बची थी। वो माजूर था नहीं,
पर बन चुका था। दिनों में वो बिस्तर से जा लगा। हर वक्त की हाय हाय, जिस्मानी और ज़हनी अजियत, साथ माली तकालीफ भी, सारा जमा जत्था उसकी बीमारी पर लग गया। दोनों भाई भी अपनी सेविंग्स उस पर लुटा चुके। उसका अपना कारोबार सिफर हो चुका था। उसकी एज़ा वहीं की वहीं थी। हर दवा बेअसर जा रही थी। माहीन ने उसके लिए हर अजियत चुनी थी, पर मौत नहीं। वो मर जाता तो सब खत्म हो जाता, लेकिन अब जिंदा भी था तो उसे क्या मिल गया था। ज़ियाद की तबीयत बहुत ख़राब है। कल भी 2 बार उसे लेकर गए हैं ताया अब्बू और भाई। जैसी करनी वैसी भरनी। मरियम ने उसे बगौर देखा। एक बात बताओगी? माहीन उसे देखने लगी थी। तुम्हें अच्छा लगता है उसे यूं देखकर? दिल को सुकून मिलता है तुम्हारे? ये सोच कर राहत मिलती है कि उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसका बदला मिल रहा है उसे। उसे तकलीफ में देखकर तुम्हारे घाव भरने लगते हैं क्या? दर्द कम होता है क्या? वो खामोश रह गई थी। उसके घाव तो वैसे के वैसे ही थे। उसका दर्द तो कम हुआ ही नहीं था। उसकी हाय हाय सुनकर भी कलेजे को ठंड नहीं पड़ी थी। वो अपने हाथ से उसके टुकड़े कर देती, उसे ज़िबा भी कर देती, तब भी उसके घाव नहीं भरने थे। वो मरियम की बातों के असर में थी। ज़ियाद को उस हालत में देखकर उसे बुरा लगा था? नहीं। तो क्या अच्छा लगा था? शायद वो भी नहीं। यह हमारा अपना मन घड़त मफरूज़ा है कि बदला सुकून देता है। जालिम को उसके जुल्म की आग में झुलसता देखकर राहत मिलना मुमकिन ही नहीं। तुम शर के रास्ते खैर कैसे कमा सकते हो? फिर मैं क्या करती? उसे यूं ही छोड़ देती? ऐसे ही? वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर ले गया, मुझे और मेरे ख़ानदान को तबाह कर गया, और मैं उसे बस ऐसे ही जाने देती? तुम हो कौन? आईने में उसका अक्स उसी से पूछ रहा था। मैं इंसाफ हूँ, मैं उसके लिए अजाब हूँ। वो खुद पर तंजिया हंसी। तुम तो इंसान हो। वो खुद को देखती रह गई। मजलूम कभी अपना इंसाफ खुद कर ही नहीं सकता। वो डंडी मारेगा हमेशा। वो अपने जालिम को बदले में जो भी सजा देगा, खुद पर होने वाले जुल्म के सामने उसे वो कम ही लगेगी। तुम्हें बदले का हक दिया गया, लेकिन पहले ये तय करो कि क्या बदला लेना था तुम्हें। तुम्हारी सोच उस गुनाह का बदला तय कर सकती है जो उसने किया। तुम्हारी समझ, तुम्हारे इख्तियार इस काबिल हैं कि उसे बदला दे सको, इंसाफ कर सको। वो थक कर बिस्तर पर बैठ गई। वो बाइख्तियार होते हुए भी खाली हाथ थी। उसके वजूद में तो बस खालीपन बसा हुआ था। लौट जाओ माहीन, अभी भी देर नहीं हुई। शायद देर हो गई है। अब वापसी शायद मुमकिन नहीं। उसे देखकर तो यही लगता था कि उसकी सूखी खाल और उभरी हुई नसें, उसका लागिर वजूद और बेचैन रूह, उसकी दर्द भरी चीखें और रोने की आवाज़ें, वो सब बर्दाश्त से बाहर था। उसकी माँ के लिए, उसके बाप के लिए। उस दिन उसे बहुत देर तक देखते रहने के बाद माहीन ने वो फैसला लिया था। उसे वो आखिरी चिल्ला काटना था और अश्तामान की रूह को आज़ाद कर देना था। तुम्हारा काम पूरा हुआ, मेरा बदला बस इतना ही था। और उसकी कीमत, और वो कीमत मांग चुका था। उसकी बहन, उसका जिंदा बचा आखिरी सगा रिश्ता, वो आखिरी सहारा और आखिरी जायपना। उसने शिद्दत से इनकार में सर हिलाया था। तुम इनकार नहीं कर सकती। तुमने हर कीमत चुकाने की कसम खाई थी। तुमने दास बनने के लिए ये मुआहदे किए थे। तुम्हारी चाहत पूरी हुई। अब कीमत तो देनी ही होगी। कुछ भी और मांग लो, मेरी बहन नहीं। वो तोड़ पूछने आमिल के पास पहुंची थी। उसकी बात सुनकर वो भी शुशदर रह गया था। ये ऐसे काम नहीं करता। ये कोई शॉपिंग चल रही है कि आज कोई चीज़ खरीदी, पसंद नहीं आई तो कल वापस करने आ गई। मैं उसकी मांग पूरी नहीं कर सकती। वो मेरी बहन है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। मांग तो पूरी करनी होगी, हर हाल में। वो शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाती रह गई। शर का दायरा फैलता गया और उसका फंदा उसकी गर्दन के गिर्द तंग होता गया। अश्तामान की वो पुरानी रूह उसकी दुश्मन हो गई थी। वो रोज़ नित नए तरीक़ों से उसे सताने लगी। कभी कपड़े फटे मिलते, कभी घर में आग लग जाती, कभी खून के छींटे मिलते, मुर्दा जानवर, हड्डियाँ और जाने क्या क्या। वो बुरी सी बास, वो धुआं और कसीली बू। वो बैठे बैठे तड़पने लगती, चलते चलते गिर पड़ती और लेटे लेटे चिल्लाने लगी, कीमत दे दे वरना तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। वो हर रात उसके बिस्तर के सिरहाने खड़ा मिलता। हर रात एक नई अजियत से कटती थी। दिनों में वो मरीज़ा हो चुकी थी। कीमत दे दे, वो उसके वजूद पर हावी। दिनों में वो मरीज़ा हो गई थी, वैसी ही जैसी ख्वाहिश उसने अपने जालिम के लिए की थी, हूबहू वैसी।
चूड़ा मुड़ा जिस्म, बिखरे बाल, सूखी आंखें, पुपड़ियां जमी खाल और हड्डियों की गठड़ी, कीमत दे दे। सवाल वही था, उसका जवाब भी वही था। वो उसके वजूद पर हावी होता जा रहा था। वो हर वक्त अपनी गर्दन के गिर्द उसकी गिरफ्त महसूस कर सकती थी। वो उसका खुद के गिर्द शिकंजा कसता हुआ महसूस कर सकती थी। वो उसके दिमाग में किसी बीमारी की तरह फैलता जा रहा था। कीमत दे दे, मैं चला जाऊंगा। उसकी हर ना के जवाब में वो उसके जहन के पर्दों पर सियाहियां बखेरता जाता था। उसे लगता था कि वो अंधी होती जा रही है। उसे कुछ दिखाई देता तो बस तबाही। मरियम ही थी जो उसके साथ थी। वो उसके साथ सोने लगी थी। आंख खुलने से आंख बंद होने तक उसका हर काम वो खुद करती। वो तो नकाहत की मारी पानी तक उठकर नहीं पी सकती थी। सारा वक्त दुखन का शिकार जिस्म लिए वो बिस्तर पर पड़ी रहती। कोई आग थी जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। उसे अब रोज ही दौरे पड़ने लगे। रोते चिल्लाते वो खुद को मारने लगती थी। खुद को नुकसान पहुंचाने में वो किसी भी हद तक जाती थी। कभी चेहरा नोच लिया, कभी खाल चीर डाली, कभी कोई तेज धार शय मिल जाती तो लहूलुहान कर देती खुद को। सर दीवारों से टकराने लगती और फिर हिज़ियानी अंदाज में चीखती, चला जा, चला जा, जा, चला जा। कई बार उसने छत से कूदने की कोशिश की। मरियम ने उसका ऊपर जाना बंद कर दिया। वो पंखे से लटकने की कोशिश करती मिली। मरियम ने पैर में रस्सी डाल दी। तेजाब की बोतलें, दवाइयाँ, हर शय उसके कमरे से गायब कर दी गई। मरियम बाजी, उसने उस रात उसे पुकारा था। वो उसके बिस्तर के पास ही लेटी हुई थी। वो वहीं सोती थी और वहीं जागती थी। उसके सवाल का अब जवाब उसके सिवा अब उसका था भी कौन? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई मजलूम बदले की आग में ऐसा जले कि जालिम से भी आगे निकल जाए? उसने चौंक कर उसे देखा था। इतने दिनों के पागलपन के दौरान ये पहली बार था जब वो ऐसे बात कर रही थी। और क्या ऐसा मुमकिन है कि वो इतनी दूर निकल आए कि वापसी मुमकिन ना रहे, लेकिन वो फिर भी घर वापस पहुंच जाए? मरियम उसे देखती रह गई। माहीन की सूखी आंखें पानियों से भरने लगीं। मैं एक बेवकूफ़ लड़की हूँ बाजी, मुझे पता है। अपनी बेवकूफ़ी और लाइल्मी में मैं खो गई थी, लेकिन अब मैं घर वापस आना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद करो। वो बड़ी आस से उसका हाथ थामे कहने लगी।